Okay, should I continue? Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So digital यस की यस आवाज आ promoting रहा है of our product or services. हाँ सर बोलिए. ओके आ रहा है अभी अभी आ रहा है आ रहा है Promotion अभी of our अभी services with आवाज the आ रहा है help कुछ of. प्रॉब्लम नहीं है एक बार नेट कनेक्शन भी चेक कर लो थोड़ा अटक रहा है आवाज में तो आप चेक कर लो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है ठीक है अच्छा अब ओके एक बोलिए एक बार चेक कर लो हाँ सर. ऑडिबल है अभी सर. यस अब आ रहा है यस ओके ठीक है. हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे हाँ हेलो कि डिजिटल मार्केटिंग इट इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ए डिजिटल डिवाइस और ए टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइस जो है हमारा उसमें इंक्लूड होता है लैपटॉप्स या फिर अपने मोबाइल फोन्स जिसके थ्रू जो है हमारे हम जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जो टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड होता है वेरियस सॉफ्टवेयर और वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं जैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जो ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि हमारे फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया देन देर इज एंड देन देर इज कोरा देन लिंक्डइन. सो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स को जो है प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दी मेन फीडर एंड द सोर्स इज द इंटरनेट. सो बेसिकली जो है इसका डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन हमारा प्लेग्राउंड हम लोग जो बोल सकते हैं वो है इंटरनेट जहाँ पर जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट की. And other platforms, it includes mobile phones, digital banners, and many other forms of digital media. Next जो है the legacy way of marketing previously included business owner which publicize their services or products on print media like newspaper. तो legacy way basically ये होता है कि जो हमारा traditional form of जो marketing होता है था उस समय बिजनेसमैन और जो इंडिविजुअल्स होते थे they used to promote their product via traditional manner that is in newspapers followed by radio television billboards या सब आपने देखा होगा. So जो वो सब जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में आता है which is like kind of outdated right now. People do use that but आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस जो है अपग्रेड हो चुके हैं टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग. उसके रीजन हम लोग आगे देखेंगे कि why the many of the businesses have switched from traditional to the digital form of marketing. Next is the other physical forms of media where holding business cards and other forms of media to follow. Then the making use of internet or the online networking sites were not a thing. So previously like the use of internet or the online networking it was not a like people did not like believe in those things and they were mostly strict towards the traditional form of marketing that is promoting their product in the newspaper or radio. But that too has their very disadvantages like the radio or the billboards they have very limited reach while on the other hand digital marketing it has a very wide reach. Okay. So next question it arises why digital marketing. So digital marketing over the years it has evolved a lot. Okay. So people spend a lot of time on internet and a lot of things happen. Just for an example, in a 60 seconds there are like millions of people who post a number of posts on the Instagram. Millions of people do log in on the Facebook. So there is a lot of thing which is going on. So which means that uh, there is a lot of audience to whom we can reach. Okay. So why digital marketing? So digital marketing is mainly the internet marketing. So there are endless possibilities for brands including video, email, social media or web-based marketing opportunities. Okay. Then why go digital? So according to world stats, there are 4.66 billion people who are active on internet. So this thing is like there are lot of opportunities. So many people are active or online on internet. ठीक है ना और उसमें से जो है 700 मिलियन पीपल आर इंडियन इटसेल्फ. तो यहाँ पे ह्यूज मार्केट है फॉर द इंडियन मार्केट इंडियन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड इटसेल्फ.
700 million people are online or active on the internet. Okay. नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक डिजिटल मार्केटिंग. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया, that includes newspaper, radio, then there is billboards, then there is pamphlets, flyers. ये सारी चीजें जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आती है. एंड इसके अलावा जो चीजें होती है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग विच इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए आपके जो मैंने आपको. उसमें जो मेन डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता दूं. तो फर्स्ट इज अ रीच. फॉर एग्जांपल जब इन द ट्रेडिशनल फॉर्म वी यूज फ्लायर्स. आपको फ्लायर्स होते हैं जो बैनर्स होते हैं. ओके, सो उसकी रीच काफी ज्यादा लिमिटेड होती है. लाइक आप जब प्रिंट कराते हो तो लाइक 100 200 तो काफी लिमिटेड आप प्रिंट कराते हो, काफी लिमिटेड लोगों को रीच होती है. बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में जो है आप ऑन अ डेली बेसिस आप लैक्स ऑफ पीपल को रीच कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट इटसेल्फ फॉर द रीच. नेक्स्ट इज द नॉन वर्सटाइल. ओके, so let's talk about the flyer. I give you the example of flyer or the poster. तो जो पोस्टर के जो साइजेस होते हैं वो काफी एक लिमिटेड होते हैं. दैट इज द A5 साइज या A6 साइज के आपने पोस्टर्स या बैनर्स देखे होंगे जो एक ही साइज में प्रिंट होते हैं और एक ही साइज में जो है लोगों तक पहुंचते हैं. बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है आप बैनर्स देखोगे तो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं. जब 200 बाय 200, 300 बाय 300, 250 बाय 250 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं. If you look at the certain articles, you will find such banners at the top of the website or at the bottom of the website or on the right hand side. So the banners are available in various sizes. So this makes the digital marketing a very versatile form of marketing. Uh, Next is delayed communication. सो डिलीट कम्युनिकेशन ये पॉइंट में ऐसा होता है हो जाता है कि जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है उसमें आता है हमारा टेलीविजन. तो टेलीविजन में जो है अगर सपोज आपको अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है इन द मॉर्निंग स्लॉट तो वो ज़रूरी नहीं है आपको स्लॉट मिलेगा. सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आपको वेट करना पड़ेगा. आपको इवनिंग का स्लॉट मिल सकता है. बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देयर इज एन इंस्टेंट कम्युनिकेशन. देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कि लाइक आपको मॉर्निंग का स्लॉट लेना पड़ेगा, इवनिंग का. यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस एट ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे. नेक्स्ट इज द लैक ऑफ रियल टाइम रिजल्ट. तो इस इसमें होता क्या है, सपोज यहाँ पर आपने एक बैनर लगाया है. ओके, बैनर का जो ड्यूरेशन होता है वो फॉर द मंथ ऑफ 1 मंथ होता है, 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है. आप जो है आफ्टर सपोज 1 वीक आप उस चीज को जो है अपने रिजल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने जो है आपके बैनर को देखा है. आपको पता ही नहीं चलेगा. बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपके पास एक कंप्लीट एनालिटिक्स होता है. कितने लोगों ने आपके एड्स को देखा है, कितने लोगों ने जो है क्लिक किया है, और कितने लाइक्स एंड कितने कमेंट्स एंड कितने शेयर्स. तो इसकी वजह से जो है आपका एक रियल टाइम रिजल्ट जो है आपके पास आ जाता है. नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में आ जाता है अपना एक्सपेंसिव. तो इसमें जो मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे टेलीविजन है, हम जानते हैं कि टेलीविजन में जो पर्टिकुलर स्लॉट होते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट, मॉर्निंग स्लॉट या फिर प्राइम टाइम का जो स्लॉट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. और एंड ऑन दी अदर हैंड जो डिजिटल मार्केटिंग होता है जो हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग लेस एक्सपेंसिव होता है. इसमें हम अपना बजट मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस डिपेंडिंग ऑन आवर बजट, वेरी ओन बजट. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू रीच टारगेट ऑडियंस. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल टेलीविजन एड्स में जो है जो एड्स होते हैं वो जनरल सभी लोगों को दिखते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही दिखेगा. फॉर एग्जांपल जो है बायजूस के एड्स हैं वो सभी लोगों को जो है दिखेगा टेलीविजन. तो स्पेसिफिक लोगों को जो स्पेसिफिक जो उनका टारगेट है उनको नहीं दिखेगा. बट in the in the example of digital marketing, it is very easy. We can to target our prospected customers like based on their age, उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, कौन से रीजन में है, इंडिया में या दिल्ली में है, मुंबई में है. हम उस हिसाब से उनको डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दी पुअर कैंपेन मेजरमेंट. अब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में होता क्या है कि
कि हमें रियल टाइम रिजल्ट नहीं मिलता कि कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा, कितने लोगों ने जो है उस ऐड को देख के हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो हमें तो रियल टाइम जो रिजल्ट नहीं मिलता, कि हमें पता नहीं चलता कि ये जो हमारा कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो रहा भी है कि नहीं है। हमें लाइक 1 मंथ या 3 मंथ्स के बाद पता चलेगा इन केस ऑफ बैनर, जो हम बैनर एड्स लगा। बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमें जो है एक रियल टाइम रिजल्ट मिलता है, यानी कि ऑन ए डेली बेसिस जो है हमें एक रिजल्ट मिलता है, कितने लोगों को ये रीच हुआ है, कितने लोगों ने इसे पसंद किया है। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन लाइक एनालाइज कि हमारा जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं हो चुका है। So ये guys the difference between the traditional marketing and digital marketing. नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. One of them is the SEO, then there is search engine marketing, there is email marketing, affiliate marketing, social media marketing, content marketing and mobile marketing. हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ आपको ऊपर से बता देता हूँ कि होता क्या है. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट इज अ प्रोसेस of increasing the quality and the quantity of relevant organic traffic by to your website from search engine. तो बेसिकली SEO में होता क्या है? When you search for an keyword, specific keyword जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो ये वांट कि आपकी वेबसाइट जो है सबसे टॉप पर रैंक करे. तो आप उसे कैसे रैंक करोगे? तो देयर आर टू वेज टू डू दी SEO. उसमें होता है एक ऑर्गेनिक और एक नहीं सॉरी ऑन पेज एंड एन ऑफ पेज SEO. SEO का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिख रहा है? हेलो हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yeah, sir. Okay. So this is over here. I will give you an example of the what exactly is search engine optimization. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड सर्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग. ओके. तब ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, आपको पता है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, देन देयर इज अलीबाबा. तो ये काफ़ी सारे वेबसाइट है. तो ये सभी को जो है यहाँ टॉप पर रैंक करना होता है यहाँ पर. ओके. एंड हाँ, यहाँ पर जो टॉप पे वो देखिए वो ऐड है, यहाँ पर जो है एक ऑर्गेनिकली जो है रैंक कर रहा है वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए. ऑनलाइन शॉपिंग इस कीवर्ड्स के लिए अमेजोन ने जो है रैंक किया है, जिसकी वजह से वो टॉप पर आ रहे हैं. तो ये इससे जो है रैंक करने के लिए हमें ऑन पेज एसईओ करना होता है. ऑन पेज एसईओ बेसिकली होता है कि हमारे वेबसाइट के जो कंटेंट्स में या फिर विद इन वेबसाइट जो हम चेंजेस करते हैं उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ. ऑफ पेज एसईओ बेसिकली ऑफ पेज एसईओ होता है जब हम हमारे वेबसाइट के बाहर जिस चीज़ों पे वर्क करते हैं, जिस वजह से हमारी वेबसाइट ऊपर रैंक करती है, उसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ. इसे ये काफ़ी एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम डिटेल में एक बार में देखेंगे. नेक्स्ट इज द सर्च इंजन मार्केटिंग. तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग अ बिजनेस यूजिंग पेड एडवर्टाइजमेंट ऑन सर्च इंजन एंड अदर वेबसाइट. यहाँ पे भी एक सिमिलर जो है एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन शॉप. अब यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है आपको एड्स दिखेंगे, उसके बाद जो है आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखेंगे. जो amazon.com है वो एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, लेकिन ऊपर जो आपको दिख रहा है माई यूएस, ये जो है एक पेड एडवर्टाइजमेंट है. अब होता क्या है कि कई बार जो है बिजनेसेस जो है अपने एसईओ करते हैं बट उनको उस वजह से रिजल्ट नहीं मिलती, तो दे ऑप्ट फॉर द सर्च इंजन मार्केटिंग. तो ओवर हियर जो है दे पे टू द सर्च इंजन टू एडवर्टाइज देयर website on the top of the this is search result. So every time जो है जब कोई person जो है इस link के ऊपर click करेंगे, the company that is MyUS has to pay certain amount to the search engine that is Google. That is तो ये होता है search engine marketing. नेक्स्ट जो है ईमेल मार्केटिंग. तो ईमेल मार्केटिंग इज एन इफेक्टिव वे टू कैप्चर हाई क्वालिटी लीड्स एंड कन्वर्ट देम टू कस्टमर्स by sending personalized email to the target audience. तो ईमेल मार्केटिंग इज बेसिकली एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है,
जिसमें हम पर्सनलाइज मैसेजेस जो है हमारे जो प्रोस्पेक्टेड कस्टमर्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें वी कैन सेगमेंट आवर ऑडियंस, दैट इज फॉर एग्जांपल मुझे जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए प्रमोट करना है तो मैं अपने ऑडियंस को सेगमेंट कर सकता हूँ. दैट इज स्टूडेंट, इस एज, उसका लोकेशन कहाँ पर है, मुंबई में है या दिल्ली है. एंड ऑल्सो आई कैन ऐड एन ऐड बटन एट द बॉटम. एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ. इस तरह के ऐड जो है आपको दिखे होंगे जो आपको ईमेल्स में आते हैं, जिसके बॉटम में जो है एक एक्शन बटन होता है जिस पर आप क्लिक करोगे you will be redirected to their own website. So this is an example of an email marketing. Next is the affiliate marketing. So affiliate marketing is an effective way of digital marketing that involves a merchant paying commission to one or more affiliate. तो इसको परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं. आप सभी लोग ने टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना होगा, राइट? सो वो क्या करते हैं अपने जो वेबसाइट सॉरी यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, सॉरी रिव्यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के, मोबाइल फोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के. एंड इन दी एंड वो कहते हैं द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो बेसिकली जो है वो आप जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और अगर आपने जो उस प्रोडक्ट को खरीदा तो जो मर्चेंट जो है जो टेक्निकल गुरुजी को सर्टेन अमाउंट पे करेंगे. तो एक एफिलिएट लिंक जो है वो अपने वीडियोस में डालते हैं. एंड ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के वर्क नहीं करता, दिस आल्सो वर्क्स इन दी ब्लॉग्स. काफी सारे ब्लॉगर्स जो है इस तरीके से अर्न भी करते हैं एफिलिएट लिंक्स के. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू. This is an example, and once you click over here you will be like redirected to the website, and once you make an purchase a certain set of commission will be paid to their affiliate marketer. Next is the social media marketing. So social media marketing, it involves creating different types of content for various social media platforms in order to promote their products or services. So social media marketing, it has evolved a lot over the years. So there are different social media platforms, that is Facebook, Instagram, and LinkedIn. Then there is Quora too. So you might have seen those ads on the in your Instagram feed or your Facebook feed or in the Facebook stories too. So uh, in the social media marketing, you can promote your product either organically or via paid marketing. अब ऑर्गेनिक होता क्या है, तो ऑर्गेनिक बेसिकली होता है कि जैसे एक आप इसे कह सकते हैं फ्री काइंड ऑफ, इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं लगता. सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज बेसिकली सपोज I sell bicycles on Facebook. So what I will do, I will upload an image of the same my bicycle. I will write a long post about the description and I will post it. और दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कि मैं ऑर्गेनिकली उसे प्रमोट कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच होगा और प्रमोट होगा. देन देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज पेड फॉर्म, पेड एड्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन पेड एड कि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड, राइट? दिख रहा है आपको ये? हेलो हेलो. Sir? हाँ बोलिए, दिख रहा है ये? Yeah, sir, we can see. So this is an example of an Facebook paid ad, जहाँ पे आपके बॉटम आपको टॉप पे जो है स्पॉन्सर्ड एड दिखेंगे, and you can target to the people based on your targeted audience, and specifically जो है अपने target audience को जो है reach कर सकते हो, and you can get clicks over there. Next is the content marketing. So content marketing, it is an effective marketing technique of creating and distributing valuable online content to the target audience. Okay, so content marketing में basically it use होता है blogging, video. Uh, तो कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली होता है टू क्रिएट एन वैल्यूएबल एंड वेरी एक्यूरेट कंटेंट फॉर आवर टारगेट ऑडियंस. बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स दैट इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे यूज कंटेंट मार्केटिंग in order to spread brand awareness about their own company or their own brand. And content marketing basically एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वर्क करता है, that is the
आपको यूनिक कंटेंट होना चाहिए and so that it reaches the maximum number of people. And it is done through not just video, that is YouTube. You might have seen various content on the YouTube itself, but content marketing can also be done through blogging, writing very creative contents on your blog pages. So this was about content marketing. This is an example of an content marketing where they have shown the result about the weight loss. So your content should be very unique and it should be very true, so that it reaches to the more number of people and creates a lead for you. Next is the mobile marketing. So it is a digital marketing strategy that enables a company to reach the target audience in a relevant manner through any mobile devices via messages, email, and app install. So mobile marketing basically it involves like marketing on the mobile phone itself, that is on mobile phones or tablets itself, via messages, emails. Okay, so example I would like to give for mobile marketing is that you might have installed many apps. You might have got that pop-up ads on your cell phones when you are like playing some game or using some application. Also, you might have get ads of the Swiggy or the Zomato. Example I would like to give. This is an example. This is a pop-up ad that appears on your cell phone when suppose you're playing a game. This is a type of pop-up ad that you get when you're using a cell phone. So guys, this was about the various types of digital marketing. I have just given Excuse you me, sir. yeah. Sir, can you explain the second one again, sir? Search engine marketing. Yes, sir. This one, right? Yes, sir. Okay. So search engine marketing. So basically, what happens, right? The bottom one you can see, right? The Amazon.com. So it has appeared like organically. Okay. So like I said about the SEO, when you do like really good SEO of yours, that is on-page SEO and off-page SEO, so Google rank your website on the top of it. So in case like your website is not ranking, okay, not at all wrong ranking. So what you can do is that you can pay to the search engine. Okay, you can pay to the Google itself to rank your website on the top of it. Okay, for example, you can also check for yourself on the Google. Suppose if you Google like something like over here online shopping, so you might see 2 to 3 ads. Those ads are the paid ads. Okay, so my US has basically paid the Google to advertise their website on the top of the search result over here. Uh, Now what happens is suppose a person clicks on this link with this on this ad, then the my US has to pay a certain amount of money to the Google because they are advertising their own website on the top of it. Okay, so this is a paid form of advertising. While the SEO the Amazon.com that you are seeing, that is an SEO, that is not a paid form of ads. While this is my US, it is an example of an search engine marketing, that is a paid ad that you pay to the Google to appear on the top of the page for this particular keyword. You can also check, for example, you can Google like the car or a mobile phone. So you might see the 2 to 3 ads. So those are the paid ads. We will like talk about like the in depth of the search engine marketing in the further lectures. So this was like just the overview of the what like just what exactly it is. Okay. Anyone has like any other doubts in this type of marketing? Hello. No, sir. Okay. Patru sir, are you there? Yes, yes. Hello, yes. Yes sir. Yes sir. We are हो गया done क्या with the इंट्रोडक्शन हो गया क्या given the overview like about the what digital marketing it is यस and यस what यस यस are the different types of marketing. ओके Yes sir. तो मैं इनसे बात करता हूँ बाकी का कि कैसे इनको करना आगे इंटर्नशिप तो ठीक है एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मीटिंग ओके Thank you, sir. थैंक यू राहुल Thank you sir. Thank Thank you, you. sir. थैंक यू